السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں میں وطن عزیز پاکستان کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آئے دن روز بروز اخباروں کے اندر، نیوز چینل میں بے شمار واقعات آپ کو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ پہلے ماں نے اپنے بچوں کو زہر دیا اور پھر خود بعد میں زہر کھا لیا۔ باپ نے پہلے اپنے بچوں کو مارا اور بعد میں خود کشی کر لی۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ساہیوال کے اندر ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کو زہر دے دیا۔ ایک بیٹے کی عمر 10 سال، ایک بیٹے کی عمر 8 سال اور ایک بیٹے کی عمر 6 سال۔ طرح طرح کے واقعات۔ اور ایک واقعہ فیصل آباد کا آپ نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ عورت نے اپنے بچوں کو مار دیا۔ وجہ کیا تھی کہ شوہر نے خرچہ نہیں بھیجا اور وہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے تنگ آ کر اس نے بچوں کو بھی زہر دے دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ ہمارے ملک کے حالات اس وقت جس سنگینیت سے گزر رہے ہیں، اتنے پریشانی والے حالات پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم خودکشی کر لیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم حالات سے تنگ آ کر اللہ کی حدوں کو پامال کر دیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کا گلا گھونٹ دیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بچے لینا چھوڑ دیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم انسانیت کو بچانے کی خاطر مارنا شروع کر دیں؟ ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ جو پاسنگ مارکس اس نے خود سوچے تھے میں اتنے لوں گا لیکن اتنے نہیں وہ لے سکا، تو وہ خود سمجھتا ہے کہ میں اب خودکشی کر لیتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح کسی مقابلے میں کوئی ہار جاتا ہے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ کوئی بندہ قرض کے بوجھ تلے آیا اور اس نے بھی اپنے آپ کو زہر دے کے مار لیا۔ کوئی بندہ، اس کا پسندیدہ لیڈر جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ کوئی چہیتا جس کا کوئی گلوکار فوت ہو جائے تو وہ اس کی فوت ہونے پر خودکشی کر لیتے ہیں۔ قومی کرکٹر اگر کوئی میچ ہار جاتی ہے تو اتنا جنون ہے کہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ کوئی مناسب روزگار نہیں ملتا تو خودکشی کر لیتے ہیں۔ بل زیادہ آ گیا تو خودکشی کر لی۔ یہ بھی آپ نے رپورٹ پڑھی ہوئی ہے کہ ایک بندے کا بل پچھلے مہینے 23,000 آیا، اس نے اپنی موٹر بائک بیچی، اور اس مہینے 26,000 آیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ کیا خودکشی کرنے سے معاملہ حل ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، معیشت کا کنٹرول وہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ معیشت کی بہتری، معیشت کی کمزوری، جب سارے معاملات اللہ کی طرف ہیں، الیہ یرجع الامر کلہ، سارے معاملات اللہ کے سپرد ہیں، تو معیشت کی تنگی، معیشت کی بہتری، شاید اس حال میں اللہ چاہتے ہوں کہ میرے بندے میرے قریب آ جائیں، میرا ذکر زیادہ کریں، نمازوں کی فکر زیادہ کریں، روزوں کی فکر زیادہ کریں، صدقہ و خیرات دیں، شاید رب یہ چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس کا علاج یہ ڈھونڈ لیا کہ خودکشی کر لیں، اپنی زندگی کو ختم کر لیں اور سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، معیشت کی کمزوری یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے، اور معاملات کو آزمائش سمجھتے ہوئے اس پر صبر کیجئے کہ شاید آج کی یہ تنگی کل کے لیے انشاءاللہ بہتری کا سبب بنے گی۔ تنگی کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں۔ آج مشکل ہے تو کل آسانی ہو جائے گی، آج پریشانی ہے تو کل انشاءاللہ اللہ سہولت پیدا کر دیں گے، آج مشکل ہے تو کل آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو معاملات کو آزمائش سمجھیں اور اس پر صبر کریں۔ لیکن وطن عزیز کے اندر آج کل ایسا نہیں ہے۔ بس گلا کاٹو، خودکشی کر لو، پھندا دے لو اور نہر میں چھلانگ لگا دو، بجلی کو ہاتھ لگا دو، یہ حل نہیں ہے۔ اس سے تو آپ اللہ کی حدوں کو پامال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाते हैं हम जरूर भी जरूर तुम्हें आजमाएंगे, और आजमाने के मुख्तलिफ तरीके हैं अल्लाह के। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के जरिए से, भूख के जरिए से, व नक़्स मिनल अमवालि वल अनफुसी, मालों की कमी हो जाएगी और फलों की कमी हो जाएगी, वल अनफुसी वस्समरात, इसी तरह नफ्सों की भी, जान की भी कमियां हो जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, जो इन तमाम हालात में सब्र करेगा फिर उसके लिए खुशखबरी है। तो जो इन हालात में जो बंदा सब्र करता है और अल्लाह की तरफ रजू करता है और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, इंशाअल्लाह ताला उसके लिए हालात बेहतर हो जाएंगे। और ये भी तो हम समझे ना कि अल्लाह ताला सूरत आल इमरान उसकी आयत नंबर 140 में इरशाद फरमाते हैं तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन है, कभी खुशी है कभी गम है, कभी आसानी है कभी मुश्किल है, कभी दिन में आप अच्छा खाना खाते हैं कभी आप नहीं खाना खा पाते, कभी आपकी दिहाड़ी मजदूरी अच्छी लग जाती है कभी आपकी अच्छी नहीं लगती। जिस तरह बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, इसी तरह कभी अमीरी कभी गरीबी, कभी दिन अच्छे कभी हालात बुरे, तो ये तो चलना है साथ। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम खुदकुशियां करना शुरू कर दें। तो ये समझें कि आज तंगी के हालात हैं, इंशाअल्लाह कल बदलेंगे। अल्लाह ताला फयक़ूलुल इंसान, अल्लाह तबारक व तआला देखें ना कुरान, फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरम, अल्लाह कभी दे के भी आजमाते हैं कभी लेकर भी आजमाते हैं। आप सूरह फजर को पढ़ के देख लें, तो अल्लाह दोनों तरीकों से आजमाते हैं कि मेरा बंदा क्या करता है, अगर मैं उसको देता हूं तो क्या करता है, और अगर उससे ले लेता हूं तो मेरा बंदा क्या करता है। तो वतन अजीज में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, दिन ब दिन मायूसियां और दिन ब दिन वतन अजीज से मोहब्बत, जी आपका वतन तो ऐसे हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, इसलिए मायूसियां और मायूसी का नतीजा फिर इंसान को खुदकुशी की तरफ ले जाता है। आप ये देखें कि हर बंदा, हर जानदार, चाहे कोई परिंदा है, चाहे कोई दरिंदा है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई हैवान है, चाहे कोई मछलियां हैं जो इतना इतना रोजाना है, इन सब के रिज्क का जिम्मा किसके है? हम सबको पता है कि रिज्क अल्लाह के कंट्रोल में है। सूरत हूद उसकी आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं या मेरी औलाद या जितने भी मखलूकात हैं सबका रिज्क अल्लाह के पास है। तो अगर रिज्क की कमी आई तो क्या हम खुदकुशी कर लें? रिज्क हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं 12वें पारे की पहली आयत, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। अल्लाह कहते हैं हर जानदार का रिज्क अल्लाह ने लिख दिया है, कितनी देर उसने ठहरना है, कितनी देर उसने क़याम करना है, और कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना, कितनी जिंदगी है कितनी मौत है। अल्लाह फरमाते हैं हर चीज जो है अल्लाह ने वाज़ेह किताब के अंदर लिख दी है। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक सच्चे की बात, मैं कुरान मजीद में, हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने कुरान मजीद में ये बात 90 दफा पढ़ी है, और वो कायनात जो कुरान मजीद में बयान करने वाली है सबसे सच्ची है, सबसे ज्यादा अपने वादे को पूरा करने वाली है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में 90 दफा रिज्क का जिक्र किया और उसकी ज़मीरें और उसके सारे कंट्रोल अपने पास रखे कि रिज्क मेरे इख्तियार में है, रिज्क मैं देने वाला हूं, कंट्रोल सारी चीजों को मैं करने वाला हूं। तो इसलिए और अल्लाह की बात को छोड़ दिया हमने, जो 90 दफा जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि रिज्क मेरे कंट्रोल में है, मैं देने वाला हूं। और शैतान जो झूठा है, कज़्ज़ाब है, लईन है, मरदूद है, उसने एक दफा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसकी बात को जिक्र किया, अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें हुक्म देता है फकीरी का, बेहयाई का, बुराई का। तो एक तरफ देखें रब की बात है जो 90 दफा अल्लाह ने जिक्र की है, और एक तरफ झूठे, लईन, मलऊन, बदबख्त उसकी बात है। तो हम देखें कि हम किसकी बात को फॉलो कर रहे हैं। ये मईशत की तंगी, ये हालात की परेशानियां, क्या इसकी वजह से हम खुदकुशी कर लें? बिल्कुल कतई नहीं। हालात की तंगी में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। मोमिन में और काफिर में यही तो फर्क है।
सूरत बकरा उसकी आयत नंबर 156 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही फर्क है मोमिन का और काफिर का। मोमिन के ऊपर कोई तंगी आती है तो उसकी गाइडलाइन कुरान में और हदीस में मौजूद है, और काफिर के ऊपर तंगी आती है तो उसने तो अपनी मर्जी करनी, वो जिस तरह मर्जी करे, वो खुदकुशी कर ले, वो जो मर्जी करे। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबा, मोमिनों के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं, हम सब अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं, ये जो था ये भी अल्लाह का, और हम भी सब अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को देख लें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत था, कितना प्यार था, और उनकी जुदाई में आंखें जो हैं वो अपनी खो बैठते हैं, इतना रोते हैं कि बिनाई ख़त्म हो जाती है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी और परेशानी अल्लाह के सामने रखी, और ये बात फरमाई इन्नमा अश्को बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, ए अल्लाह मेरे गम, मेरी मुसीबतें, सारा कुछ तेरी तरफ है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी देख ली इसी किस्से में कि कहाँ कुआं और कहाँ भाई फेंक कर आए, फिर कहाँ वो अजीज़ मिस्र के यहाँ रहना, और फिर जेल की सहूलतें काटना, फिर मिस्र का कंट्रोल। तो मेरे भाई हालात तंगी से आसानी की तरफ आते हैं। तो तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, इंशाल्लाह हालात बदलेंगे और बेहतरी की तरफ आएंगे। ये आज का हमारा इस पर पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह इस पर बनी किस्तवार इंशाल्लाह हम 2 मज़ीद लेक्चर लेकर आएंगे कि ख़ुदकुशी इस्लाम में इसकी शरई हैसियत क्या है। हालात से तंग आकर हमें ये काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हराम है। रिज़्क़ अल्लाह के सुपुर्द है, और परेशानी आए तो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, और इस हालत में मोमिन को ख़ास तौर पे अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जो ये मायूसियाँ और नाउमीदें फैलाई जा रही हैं, अल्लाह ताला हमें हमारे हाल पे रहम फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हालात बदलेंगे, बेहतर होंगे, बस अच्छे की उम्मीद रखें। अल्लाह ताला हमें अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए।